मेरा ये मानना है कि आप 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा 2 बुक्स को 10 बार पढ़ो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अल्टीमेटली आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको रिटेन भी करना है और आपको उस अकॉर्डिंग वो लिखना भी है। So I have always been a very good student throughout. I was a top in 10th, 11th, 12th. अपने सोसाइटी में IIT, IIM से अगर कोई बैकग्राउंड से तो उन्हें लगता है तो UPSC भी वो ऐसे ही कर लेगी, बट लोग आके यहाँ पे 2-2, 3-3 साल तक प्रिपरेशन करते और नहीं हो पाता, तब समझ में आता है कि दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। मोर देन 50% क्वेश्चंस आपको लगेगा कि ये आपके प्रिपरेशन के थोड़े से बाहर के जी हैं, सर। नॉट कम्प्लीटली, जी टॉपिक सर। सेम हो सकते हैं लेकिन कंटेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पढ़ना। Just PYQs are really important. In your classes, we only used to do PYQs, no Correct. extra question. Correct. I remember that those mini tests and those full length tests revolved around PYQs. So it was PYQs. just PYQs. Correct. So in those like 2.5 months, we only did PYQs, and that really helped. Hello everyone, welcome to Civils Front. Today we have with us Prachi Pawar, who have secured All India rank 59 in UPSC Civil Service Examination 2025. So first of all, Prachi, many congratulations to you for your success and we are really proud of you. Thank you so much, sir. So Prachi, because you had PSR as your optional, political science as your optional, definitely we will be going into the length and the breadth of the subject and the overall strategy of PSR. But before that, I would like to know, because primarily many of the people, many of the candidates, they primarily want to know what have been your journey, like how you started. To be precise, I want to know, can you please tell me like what inspired you to go into the civil service or to opt for the civil services? Okay, sir. So initially, it was my father's dream Okay. to give UPSC. Okay. But he always had in mind that I will choose IES. So when I actually started preparation after graduation, so I realized that my interest like lies somewhere else. Okay. I used to enjoy international relations really. Okay. So my his dream became my dream, but Okay. the only difference was that not IES, IFS IFS, became my okay, first okay. choice. So Okay. Yeah. So definitely we will be also talking about Indian Foreign Services, because there are like Indian Foreign Service is something जो बाकी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में कि इंडियन फॉरेन सर्विस क्या है, इसकी मतलब जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसके लिए मतलब इतना प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि UPSC इज इक्वल टू IAS, इट हैज़ बीन इक्वेटेड विद IAS ऑलवेज. वी विल डेफिनेटली कमिंग टू दैट, बट माई नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू कि टिपिकली UPSC एग्ज़ाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके काफ़ी सारे मिथ्स है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 12-12 घंटे पढ़ाई करना, ठीक है, और उसके अलावा मतलब सारी दुनिया से कट ऑफ करना एक्सेट्रा, इस तरीके के. सो डू यू रियली फील कि ये सिर्फ मिथ्स है या रियलिटी में ऐसा हमें कुछ करना पड़ता है? जैसे बिकॉज यू हैव ऑल्सो बीन इन टू दिस प्रिपरेशन फॉर मोर देन 3 to 4 years. Yes, तो sir. क्या आपने भी मतलब पूरा कट ऑफ किया था? क्या ओवरऑल शेड्यूल था? मतलब कितने 12-12 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है सच में? और फोकस्ड प्रिपरेशन नाम की भी एक चीज़ होती है कि नॉट नेसेसरी कि आप 12-12 घंटे पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा आप 6 to 7 hours पढ़ो, लेकिन प्रॉपर पढ़ो. तो क्या मतलब more than the quantum of the hours, it is important the intensity of the preparation or study. So what do you think about it? How can we burst all these myths? तो सर आई वुड से आई डेंट हैव अ स्पेसिफिक लाइक टाइम फ्रेम कि मुझे 8 घंटे ही पढ़ना है या मुझे 10 घंटे ही पढ़ना है. बट यूजुअली मतलब आई हैव बीन अ स्टूडेंट, तो मैं इतना तो पढ़ती थी नॉर्मली. तो आई वुड से 10 to 12 hours मतलब मेरे हो जाते थे. बट आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम इवन लाइक बाय स्टडिंग लेस देन 8 hours. सो इट डिपेंड्स. मतलब मेरा थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि मेरी क्वालिटी कम रहती थी, मेरा फोकस इतना नहीं रहता. तो आई हैड वो 12 घंटे शायद हो जाते होंगे या 10 घंटे हो जाते होंगे, बट द आउटपुट वुड बी लाइक अराउंड 8 hours. तो मुझे वो करना पड़ता था. इफ़ एनी वन कैन लाइक फोकस, ऐसे बिल्कुल फोकस के साथ 8 घंटे में कर सकता है तो ठीक है, मतलब इट गोज़ वेल. यहाँ पे एज यू मेंशन कि फोकस, बिकॉज फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा होता है कई बार कि हम लोग 12 घंटे बैठे तो है, लेकिन उसमें से इफेक्टिव प्रिपरेशन हमारी 4 to 5 hours ही होती है. कभी-कभी हो जाता है सर. और दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स ऑफ मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स. उनका एक सवाल होता है कि फोकस कैसे इम्प्रूव करे, क्योंकि नॉट नेसेसरीली सबके पास इतना टाइम हो. जी सर. कम टाइम में भी काफ़ी लोग फिर डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं. एक तो इस पे भी बात करना चाहूँगा कि
बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। और जी जो हमारा सर। पहला क्वेश्चन था कि हाँ। कैसे हम मतलब कट ऑफ करना ज़रूरी है क्या, समवेयर इट इज़ लिंक टू दैट, क्योंकि कट ऑफ करना इसलिए भी ज़रूरी होता है सो दैट हम और भी ज़्यादा फोकस्ड होके कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई कर पाए। सो हाउ यू ensure that you are focused in your preparation, at the same time how you like what you suggest कि how we can improve the focus, because that is something, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, 1 year 2 years of preparation easily people can जी dedicate, sir। but still the focused preparation of I think 7 or 8 months is more than enough to clear this examination, because many people have done cleared this it in the first attempt, yes sir। so coming to the मतलब वो कट ऑफ करना पड़ता है क्या, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मेनी टॉपर्स डू इट कि दे डिलीट देयर सोशल मीडिया एंड ऑल। तो मेरे पास व्हाट्सएप भी था थ्रू आउट प्रिपरेशन, मतलब इंस्टाग्राम भी था, Okay. बट वो ना मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल था, लाइक वो 10 से 15 मिनट के ऊपर नहीं जाता था मेरा, व्हेन आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग लाइक स्पेसिफिक, लाइक व्हेन आई हैड टारगेट्स फॉर मेंस और प्रीलिम्स। तो आफ्टर मेंस इट वाज ओवर, तो देन आई यूज्ड टू यूज इट इवन फॉर लाइक 2 hours, बट वो सेल्फ कंट्रोल था मेरे पास कि 15 मिनट से मेरे ऊपर कभी नहीं जाता था टाइम। बट इफ पीपल कांट हैव लाइक दैट सेल्फ कंट्रोल, देन आई वुड सजेस्ट देम टू डिलीट ऑल ऑफ दीज सोशल मीडिया एप्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। Correct. तो सर फोकस का तो यही है कि एक तो ना इंटरनल होता है कि मतलब मुझे वो अंदर, यू हैव टू टेल योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। Correct. इसमें एक कैविट ये है कि सर हमेशा नहीं हो पाता, लाइक आई हैव ऑल्सो सीन वो डेज, लाइक सम डेज कि कभी तो हाँ 10 से 12 घंटे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बट ऐसे भी दिन है कि यहाँ पे जीरो आउटपुट निकल रहा है, पूरा जीरो आउटपुट निकल रहा है। मतलब किसी दिन 2 घंटे पढ़ पा रही हूँ, इवन इफ आई एम सिटिंग फॉर 8 hours, मैं सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ, मतलब वो बैठी हूँ किताब के सामने बट वो कुछ जा नहीं रहा है। तो इट हैपेंस, मतलब तो आई वुड से कि ना थोड़ा लाइफ को, मतलब ये थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सीख लिया, थोड़ा अपनी लाइफ को बैलेंस करो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ना बहुत जुनून में होते हैं लाइक एस्पिरेंट कि नहीं बिल्कुल सब कुछ करके तोड़ देंगे एक बार में, बट व्हेन आई केम कि ऐसे तो सस्टेन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई डिडंट नो कि व्हेन माय जर्नी विल एंड। सो इन थर्ड अटेम्प्ट आई लर्न दिस थिंग in a very hard way, I would say कि you have to balance things, मतलब you should give yourself break, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल पढ़ना ही है, मतलब I used to take break like after every 10th day or like after every week, in every weekend, हाँ मतलब 10-12 दिन में सर ऐसे हो जाता था, तो I used to go out and डेफिनेटली एज यू सेड, जैसे स्टार्टिंग में बहुत वो इंटेंसिटी होती है, जोश होता है, मैंने भी काफ़ी एस्पिरेंट से बात की। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल फेज़ में उन्हें लगता है कि जैसे फर्स्ट 2 months ऑफ द प्रिपरेशन एंड दे आर फीलिंग कि मुझे आंसर राइटिंग ही नहीं आ रही है, मतलब ये उनके लिए बहुत जेन्युइन और बहुत ही सीरियस कंसर्न होता है। लेकिन अदर साइड ऑफ द टेबल जब हम लोग उसको सोचते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 3-4 साल भी मतलब लोग प्रिपरेशन में रहते, उसके बावजूद भी आंसर राइटिंग नहीं आती, या ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं आती, तो दैट इज़ द आउटपुट ऑफ कि वो जो जुनून उन्हें लगता है कि लाइक इसको हम कह सकते हैं rather than जुनून we can say the expectations in the first year of the preparation are very high. Yes sir. But sometimes you have to understand the fact that this exam is not of the intensity but of the momentum. आपको वो मोमेंटम कंटिन्यू रखना पड़ेगा, सस्टेनेबल मोमेंटम, करेक्ट। और उसके लिए इवन जैसे हम 12 घंटे 10 घंटे का अगर टारगेट रखते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग टारगेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, वी शुड बी फोकसिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग की मुझे अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, और फोकस के बारे में भी जैसे आपने कहा कि फोकस मेंटेन करने के लिए कट ऑफ तो करना पड़ेगा, इवन आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा कट ऑफ तो डेफिनेटली करना चाहिए। जी सर। प्रिपरेशन में 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है कि वी स्टडी एंड वी अंडरस्टैंड, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज इज़ वी रिवाइज एंड वी ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म द थिंग्स, and the third important stage is the practice of be it MCQs or then answer writing practice. Okay. जी sir. So ideally like my understanding about the preparation is this 1 + 2 + 3 is equal to preparation. But many people misunderstood this preparation is equal to only studying. Like if you are preparing for 10 months, then out of 10 months maximum 8 months of your preparation are dedicated into only studying the part, like studying the topics. आप सिर्फ पढ़ रहे हो, जी सर, करेक्ट। जैसे मेरा ये मानना है कि आप 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा 2 बुक्स को 10 बार पढ़ो, जी सर, करेक्ट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको रिटेन भी करना है और आपको उस अकॉर्डिंग वो लिखना भी है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो एक इम्बैलेंस्ड है प्रिपरेशन में, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ या इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग इसको लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें कितना भी आप समझाओ कि नहीं, मतलब आप सिर्फ पढ़ते मत रहो, भले आप कम पढ़ो लेकिन उसको आप रिवाइज़ करो, जितना आपने रिवाइज़ किया उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, लेकिन
एक रिलक्टेंस होता है। लोगों का सवाल ये होता है कि सर मैंने पढ़ाई नहीं की, अभी तो मैं रिवाइज कैसे करूँ, अभी तो मेरा पढ़ना ही कंप्लीट नहीं हुआ। और एज वी नो, ऑल वी नो कि दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप कितना भी पढ़ते रहोगे वो ख़त्म नहीं होने वाला है। समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे इतना ही पढ़ना है, वो स्पेसिफिसिटी आपको डिफाइन करनी है। उसके बाद आपको ये समझना है कि रिवीजन प्लेज द क्रूशियल रोल, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जितना भी पढ़ा और रिवाइज किया उसको आपको कंटिन्यूसली मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उससे रिवर्स इंजीनियरिंग वाली जो मेथोडोलॉजी है, आपने एमसीक्यू देखा, 4 ऑप्शंस देखे, गलत हुआ, फिर आपके दिमाग में वो बैठ जाता है कि ये मेरा गलत हुआ था, तो उसका सही आंसर क्या है वो ढूंढो, उस टॉपिक को पढ़ो। और फिर अगर आंसर राइटिंग के वक्त भी अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, तो वी रियलाइज़ कि मुझे नहीं आ रहा है, देन वी गो टू द टॉपिक। तो वो जो रिवर्स अप्रोच है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट इम्बैलेंस है, सो प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन दिस, लाइक हाउ दिस ओवरऑल लाइक phase of preparation helped you in all 3 stages? So sir, my journey has been a very long one, 4 years. So I realized like after my second attempt that the resources are never ending. जैसे आपने बोला, तो you just have to limit yourself to the static portion. मतलब like there are some quintessential books for every subject, politically लक्ष्मीकांत, तो सर सिर्फ उतना ही करना चाहिए। मतलब मैंने तो सिर्फ यही realize किया है। And whatever you said like in the very first part is relevant, because I have seen aspirants who have just started their preparation, they compare, when they write an answer, they compare it with the topper's answer. Correct. But they don't realize how much hard work those toppers have done. These toppers write answers just before mains, so they have already become polished. So Correct. that is their filtered version. Correct. That is their best version of the answers. Correct. So this is the mistake they make. You have to go through that grinding process in order to write those good answers. Correct. So people don't realize. Coming to that part कि कितना पढ़ना चाहिए और कैसे, I would say कि पहले एक बार स्टैटिक सोर्स अपनी कंप्लीट कर लो एक बार तो एटलीस्ट, बिकॉज यू कैन नॉट राइट आंसर्स अगर आपका स्टैटिक ही कवर नहीं एक बार, तो अच्छे से एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लो, एक बार पढ़ लो, एंड देन स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड देन यू विल रियलाइज कि क्या फ्लॉज है, क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया था तो मैं लिख पाई, वॉज आई एबल टू ट्रांसलेट इट टू द पेपर, अगर मैं कुछ भूल गई इसमें क्या कुछ पॉइंट्स, तो देन यू नीड टू रिवाइज, देन यू नीड टू गो बैक, फिर उसमें और मैं क्या वैल्यू एडिशन। सो इट्स लाइक अ प्रोसेस ना, मतलब वो एक बारी में नहीं होगा कि एक बार आप पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, फिर मैं एकदम परफेक्ट आंसर लिखोगे। सो यू हैव टू गो साइमल्टेनियसली, आपको तीनों स्टेजेस को फॉलो करना है। जी सर, एंड दैट इज व्हाट इवन आई टेल, बट डेफिनेटली व्हेन यू विल टेल इट विल हैव डेफिनेटली अ डिफरेंट इम्पैक्ट. Apart of that, like when we talk about UPSC preparation at individual level, like this, the topic I am talking is less discussed, probably undiscussed topic, but I think this is the most important topic, because when you prepare, it's like you need to have a proper mindset. I mean to say a proper mental state or state of mind, because if your state of mind, like connecting to the first question, अगर आपका state of mind बहुत सही है तो आपका फोकस भी रहेगा। जी सर। और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, सेल्फ कंट्रोल की, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि आप हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे सोशल मीडिया की वजह से मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मेरे दोस्त ने कुछ कहा तो मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, कोई इसके घर में किसी का कुछ हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी का जॉब लग गया, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और हमें पता चलते हैं। मेन बात है कि लाइफ में होते रहेंगी चीज़ें, लेकिन वो हमें पता नहीं चलनी चाहिए कि क्या हो रहा है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है, मेरा फोकस इतना ही होना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शन से मतलब अगर दूर होना है, कट ऑफ करना है, तो वो एक चीज़ है। बट उसके अलावा पर्सनल लेवल पर भी आप डिस्ट्रैक्ट मतलब कट ऑफ कर दिया है आपने, पर्सनल लेवल पर वी हैव टू फेस लॉट मेनी चैलेंजेस, लाइक क्योंकि एक दो, बिकॉज हम प्रिपरेशन कोई फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है। हम प्रिपरेशन उस एज में कर रहे हैं जहाँ पर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जॉब वगैरह कुछ करें। और ऐसे सिचुएशन में देयर आर मेनी एस्पायरेंट्स हु लाइक लीव देयर जॉब्स, अपनी जॉब्स छोड़ के प्रिपरेशन करते। तो वो एक लाइक वी कैन से 22 से ऑनवर्ड्स का वो एज होता है, लाइक 30 ईयर्स तक लोग प्रिपेयर करते हैं, ये इस एज ग्रुप के लोग। तो ऐसे में इंडिविजुअल लेवल पर काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इमोशनल प्रॉब्लम्स, फैमिली का लैक ऑफ सपोर्ट, पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए एक मेंटल रेजिलियंस या एक इमोशनल रेजिलियंस की बहुत ज़रूरत होती है। आई मीन टू से दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप बुक लिस्ट और सिलेबस के पहले आप ये प्रिपेयर करके चलो कि अगर ये भी हो सकता है कि 1 साल में प्रिपरेशन हो या मेरा सक्सेस मिले, ये भी हो सकता है कि 4 अटेम्प्ट दे दूँ और फिर भी कुछ ना हो। तो आपको ये एक जो एक्सेप्टेंस है वो रखना पड़ेगा, तभी आप एक लंबी रेस का जो घोड़ा जिसको कहते हैं, एक मोमेंटम के साथ प्रिपरेशन कर पाओगे रादर देन इंटेंसिटी। तो
हाउ लाइक what kind of challenges of this kind you faced and how you overcome and what do you suggest कि कैसे हम इसको मतलब मेंटल रेजिलियंस कैसे बिल्ड करें? जी सर, सो आई वुड स्टार्ट विद एन एनेक्डोट. तो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट थ्रू आउट. Like my studies, I was a top in 10th, 11th, 12th. Correct. So I had that in my mind कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी तो रिजल्ट तो मुझे मिल ही जाएगा. But like when I came to the UPSC preparation, I couldn't clear first prelims. Although I didn't study for it, but still a failure is a failure. Then second में I put in the efforts, I put in that hard work that is needed. But still I couldn't clear prelims. So the second attempt was like a real shock for me. Like कि मैंने तो हार्ड वर्क किया था और मुझे हमेशा सक्सेस मिलती थी, तो इस बार क्यों नहीं मिली? Correct. So and at that time this was like a professional setback. I had like many simultaneous problems that were going on, like in my personal sphere also. Okay. So I was very down, sir. Okay. So it was that time when I realized the importance of emotional resilience. When I was preparing after the second attempt, while I was preparing for the third attempt, I realized कि ना उस स्थित प्रज्ञा लाना पड़ेगा, इमोशनल कंट्रोल लाना पड़ेगा. एंड इन पहले 2 अटेम्प्ट्स में ना मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती थी व्हेन आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक, कि यार मैं इस समय ना अगर मैं बाहर नहीं जाना चाहिए था, मैं इतने में इतना कवर कर लेती, या ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी अपने दोस्त से, ये हो जाती. तो वो ऑटोमेटिकली वो रियलाइज़ हो गया वो 2 साल बाद. मे बी मतलब वो इतनी मैच्योरिटी आ गई, या वो इट वॉज इंटरनल दैट आई रियलाइज दैट आई नीड टू टेक ब्रेक्स एंड आई डोंट हैव टू फील गिल्ट फॉर टेकिंग ब्रेक्स बिकॉज दैट इज़ नीडेड. वो इमोशनल रेगुलेशन सर तभी आएगा जब बैलेंस होगा लाइफ में. अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीटली आइसोलेट कर लोगे अपने आप को और बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद करके और पढ़ पाओगे, तो वो मुझे लगता है मतलब एटलीस्ट लाइक इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस सस्टेनेबल नहीं होता. तो ऐसा हो कि मतलब टेक ब्रेक्स रेगुलरली. आप बाहर भी जाओ 10 दिन में एटलीस्ट, लाइक वट एवर यू लाइक, वट एवर इज़ योर हॉबी, रनिंग है, डांसिंग है, प्लीज़ डू इट. तो सर जैसे आई लाइक वॉकिंग, आफ्टर डिनर आई स्ट्रोल. सो मैंने बंद कर दिया था फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में. तो देन आई पिक्ड अप ऑल ऑफ दीज हैबिट्स कि मैं डिनर के बाद नहीं, आई हैव टू गिव लाइक सम टाइम टू माई सेल्फ, कि वो वॉकिंग करना. आई ऑल्सो स्टार्टेड मेडिटेटिंग सर उस टाइम पे ना. तो वो मेरे लिए बहुत मतलब इमोशनल रेगुलेशन का वो काम किया. तो थर्ड अटेम्प्ट में आई थिंक मैं सेकेंड अटेम्प्ट से कम पढ़ी थी, बट स्टिल आई कुड क्लियर प्रीलिम्स, क्योंकि ना वहाँ पे आई हैड अ राइट माइंड सेट एट दैट टाइम. आई वॉज इमोशनली रेगुलेटेड. राइट माइंडसेट मतलब मेंटल और इमोशनल रेजिलियंस के साथ यहाँ पर आई वुड लाइक पर्सनली सजेस्ट कि एक फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में हम उसको मतलब सबसे पहले अगर निगलेक्ट करते तो अपना फिजिकल फिटनेस. दूसरा ये भी होता है जैसे एज यू सेड कि यू हैव ऑलवेज बीन कंसिस्टेंटली टॉपर इन थ्रू आउट योर लाइक एजुकेशनल दिस थिंग, बट देन यूपीएससी में आने के बाद सबको एक रियलिटी चेक मिलता है. जैसे देयर आर मेनी पीपल हु आर फ्रॉम लाइक अपने सोसाइटी में आईआईटी आईआईएम से अगर कोई बैकग्राउंड से, तो उन्हें लगता है तो यूपीएससी भी वो ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेनली आईआईटी आईआईएम होता है. बट जब आईआईटी आईआईएम या बहुत बड़े एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी लोग आके यहाँ पे 2-2 3-3 साल तक प्रिपरेशन करते और नहीं हो पाता, तब समझ में आता है कि दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक कुछ फॉर्मूलाज है उसमें पुटअप करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. इट चेक्स योर मेंटल रेजिलियंस. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों एस्पेक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दो. और आपने और एक इंपॉर्टेंट बात कही गिल्ट की. काफ़ी एस्पिरेंट से मैं बात करता हूँ जो काफ़ी स्टूडियस होते हैं, सिंसियर होते हैं, तो बहुत बट ऑब्वियस वाली बात होती है, बहुत नेचुरल सा होता है कि उन्हें गिल्ट फील होता है थोड़ा भी टाइम वेस्ट किया. इवन मैं भी जब प्रिपरेशन करता था तो मुझे ये बहुत था कि थोड़ा भी टाइम अगर इधर उधर गया, मूवीज़ नहीं देखूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा. तो आई थिंक उल्टा आप जितना माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करोगे इन सम हॉबीज़, मूवीज़ देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा दिमाग उतना एंटरटेन होता है. तो क्योंकि बिकॉज अगर आप वो नहीं दे रहे हो, माइंड को दूसरा कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो फिर वो उस ट्रैप में, उस साइकिल में फंस जाता है, फिर वो स्टेगनेंट हो जाता है. वो स्टेगनेंसी बहुत मतलब एक हार्मफुल हो सकती है आपकी प्रिपरेशन के लिए. बिकॉज यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इन योर ग्रेजुएशन, इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, एज वी डिस्कस्ड इवन अर्लियर ऑल्सो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आपने पहले ही मेंशन किया आपको बहुत इंटरेस्ट है, और इंटरनेशनल रिलेशन में आपने काफ़ी रिसर्च वर्क, कुछ बुक्स वगैरह लिखने में कंट्रीब्यूशन वगैरह किया है, ये सब किया है. और इसमें यू ऑप्टेड फॉर द इंडियन फॉरेन सर्विसेज और थैंकफुली आपको मिल गई. जी सर. करेक्ट, क्योंकि आपका रैंक अच्छा है. तो
बस इंडियन फॉरेन सर्विस, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यूपीएससी इज इक्वल टू IAS, बट इंडियन फॉरेन सर्विस भी काफ़ी इलाइट, काफ़ी प्रोमिनेंट और बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल सर्विस है। खास करके अभी अगर हम जैसे देखते हैं कहीं पे इवैक्यूएशन हुआ, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर ट्रेड डील हो रही है, कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर एम्बेसडर्स का, फॉरेन सर्वेंट्स, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका काफ़ी बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे इंडिया की डेवलपमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें, बिकॉज वी आर फ्रॉम द international relation background, so we know what is the implication and what are the significance of these services, but many people are not aware about it properly. So एकदम बेसिक से कि क्या है ये सर्विस, जितना भी आपको इसके बारे में पता है। सर अभी तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, वंस आई एम इनटू द सर्विस तो आई विल नो, आई जस्ट हैव लाइक अ, बट क्योंकि बिकॉज यू हैड दिस इन योर माइंड कि मुझे इसमें जाना है, तो कुछ तो उसमें रहेगा जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे ये पसंद है सर्विस। तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको ये पसंद आई, या एक इंस्पिरेशन थी? IFS मेरी फर्स्ट चॉइस बनी। यस। तो सर ये था कि आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम दैट आई वांटेड टू रिप्रेजेंट माय नेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। मुझे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, लाइक स्टार्टिंग से ही, लाइक वॉट एवर इज हैपनिंग इन जियो पॉलिटिक्स, वॉट आर द ट्रेड डील्स दैट आर हैपनिंग। सो वो हमेशा से वो इंटरेस्ट रहा था मुझे। और मेरा बैकग्राउंड भी सर इंटरनेशनल रिलेशंस में रहा है, इन माई +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन ऑप्शनल एज माई PSIR, तो वो पूरा मेरा बैकग्राउंड रहा है। देन अनदर फैक्टर इज दैट आई हैव लर्न फ्रेंच सर for 7 years. Yes. हाँ, so मतलब that would act as an added leverage. Okay. और ये था कि सर कि I also like traveling and like exploring different cultures. Okay. तो ये था that IFS as my first choice became my natural choice because it Correct. perfectly aligned with my natural temperament. Okay, your interest plus your yes, like this thing of exploring the different culture and घूमना फिरना. Correct. Right. Now the main part of our discussion is political science and international relation. जी सर। Okay. So moving towards the political science and international relation, एकदम स्क्रैच से शुरू करते हैं, क्योंकि PSR को लेके ज़्यादा ही मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। PSR के प्रिपरेशन में जो हमारी अप्रोच होती है, प्रिपरेशन की अप्रोच, स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट को देखने की अप्रोच, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जैसे इस सब्जेक्ट को PSR को ट्रेडिशनली हम लोग बहुत ही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कुछ टिपिकल स्कॉलर्स मैं याद कर लूँगा, कुछ कोट्स मैं याद कर लूँगा, और मेरे इवन इंट्रोडक्शन भी फिक्स है। जी सर। कुछ थेरीज मैंने रट लिए हैं, तो उससे वी नेचुरली नो कि फिर वो सेम सभी के आंसर्स में होता है, क्योंकि उसमें अप्लीकेशन लैकिंग है, अप्लीकेशन नहीं होता है। बट आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि अभी मैं PSR इतने टाइम से मैं PSR में हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मेंटोर कर रहा हूँ, उसमें कंटेंट में काम कर रहा हूँ, एज अ फैकल्टी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड। और मुझे PSR में बहुत इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि एवरी सेकंड थेरी, लाइक बीट रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस और बीट थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म और इवन द थॉट्स ऑफ JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के भी थॉट्स मुझे आज भी बहुत रेलेवेंट लगते हैं। करेक्ट। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि समवेयर आई एम एबल और प्रोबेबली आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद द रियलिटी। जी सर। तो जो रियल लाइफ है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अबाउट रियल लाइफ, कि कैसे हम एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस। तो द मोमेंट वी स्टार्ट लुकिंग एट द सब्जेक्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि ये एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नॉर्मल थ्योरेटिकल डिसिप्लिन नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ के से बहुत मतलब हमारे रियल लाइफ से बहुत ही रेलेवेंट एक सब्जेक्ट है। इस अप्रोच से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो व्हाट यू थिंक, लाइक कैसे इसको प्रिपरेशन करना चाहिए, थ्योरेटिकली या जिस तरीके से हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वैसे? जी सर, मतलब अपनी फाउंडेशन तो आप थ्योरी से ही बनाओगे, बट दैट विल नॉट सफाइस। करेक्ट। क्योंकि थ्योरी तो सभी लिख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का मतलब ही डिबेट है। करेक्ट। मतलब पॉलिटिकल साइंस का डिबेट है कि आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ रीडिंग। इफ एस्पिरेंट्स हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड कि ये हम लिबरलिज्म या ये कोई सा भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल प्लेटो क्यों पढ़ रहे हैं आज, कैसे रेलेवेंट है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो देन इट बिकम्स लाइक ना बिल्कुल एक डेड एंड, मतलब बिल्कुल बस एक थ्योरी पढ़ रहे हो, यू रिप्रोड्यूस इट इन पेपर एंड दैट्स इट। सो आई वुड से कि जो आप आंसर्स लिख रहे हो या प्रिपेयर भी कर रहे हो तो जस्ट लाइक
अपने दिमाग में वो चीज़ लाएं कि ये आज कैसे रेलेवेंट है. तो दिस आई यूज टू डू सर. फॉर एग्जांपल जैसे वो प्लेटो की थ्योरी पढ़ रही हूँ, तो उसमें वाली थ्योरी आती है केव्स वाली, एलिगरी ऑफ केव्स. तो उसमें बोलता है कि ये जो असली जो नॉलेज है वो बाहर है, बट वी आर इन द शैडोज. तो आज की हम इससे कैसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं. तो आई यूज टू थिंक, मतलब तभी अपने पढ़ते पढ़ते ही कि कैसे कर सकते हैं. मे बी सोशल मीडिया इज एग्जाम्पल, बिकॉज वी लिव इन इको चेम्बर्स. कभी कभी हम इतने अपनी लाइक एक स्पेसिफिक प्री इंफॉर्मेशन से घिरे हुए होते हैं, प्री कंसीव नोशन से, कि वी कैन नॉट सी रियलिटी. सो दैट aligns perfectly well. So ऐसे मेरे दिमाग में आता था, I used to write it there only. So if any questions comes on Plato की allegory of cave, then I will write it in the last कि relevant आज कैसे है थ्योरी. तो क्योंकि सर डायनामिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में. Exactly, that is my point. Yes सर, क्योंकि थ्योरी तो आप लिख लोगे, बट what will give you an edge अगेंस्ट अदर कॉम्पिटिटर्स, वही कि वो रेलेवेंस, वो फ्रेशनेस, वो डायनामिज्म अपना लाओ. तो मेरी तो आई थिंक जो भी मेजर जो थ्योरीज थी ना, मैं अपना दिमाग ऐसे ही चलाती थी, एंड आई यूज टू राइट इट माई सेल्फ. एंड अगर आप खुद भी नहीं सोच रहे हो, देन यू कैन यूज ChatGPT कि आज कैसे रेलेवेंट है ये. तो आई यूज टू जस्ट राइट इट. ओके. तो इट रियली बेनिफिटेड मी सर. तो एंड आई कुड एक्चुअली यूज देम इन द एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम. मेनली जैसे मेन क्वेश्चन यही होता है स्टूडेंट का कि एग्जाम्पल्स कहाँ से कलेक्ट करें. और मेरा ऐसा होता है कि एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने के लिए देयर इज़ नो स्पेसिफिक सोर्स. अगर होता भी है कोई स्पेसिफिक सोर्स, तो फिर वो सबके लिए सेम हो जाएगा. तो आपके यूनिक कैसे बनेंगे आंसर. जी सर. और मेन बात है कि एक तो है यूनिक, आपके आंसर्स यूनिक होने से पहले आपके आंसर्स ऑर्गेनिक होने चाहिए. ऑर्गेनिक होने के लिए वो आपके थॉट से निकलना चाहिए. तो जब तक आप खुद सोचोगे नहीं, जब तक आप खुद नहीं कनेक्ट करोगे, तब तक वो ऑर्गेनिक जो है आंसर वो नहीं आएगा. तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन टू ऑल द स्टूडेंट्स. आई वांट टू टेल यू कि आपको कनेक्ट करना है. एग्जाम्पल जैसे इन्होंने अभी इको चेम्बर का बताया, सो दैट इज़ कम्प्लीटली यूनिक बिकॉज द वे यू थिंक, इट इज़ ओनली यू कैन थिंक, नॉट एनीबडी एल्स कैन थिंक. सो दैट्स वाई आपको खुद की ओन जो एक थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, वो डेवलप करनी है. जी सर. एंड दिस प्रैक्टिस आई रियली सजेस्ट टू एवरीवन कि ये सभी ने करना चाहिए. क्योंकि ये फिर आप लोगों को लगता है कि सर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में तो ठीक है, IGP में वगैरह ठीक है, लेकिन ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वहाँ कहाँ से एग्जांपल्स कनेक्ट करेंगे. तो बस आपको वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड सोचना है. जी सर. इवन व्हेन वी, सॉरी सर, आई वांट टू ऐड समथिंग कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट यू कैन यूज इन द थ्योरी एक्चुअली. करेक्ट. जैसे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सजेस्टेड कि वी विल I think bring 1 lakh volunteers into political life, youth, 1 lakh youth into political life. So that aligns perfectly with Hannah Arendt का concept कि politics को importance दी जाती है. तो examples तो हैं, but you just have to go into that mindset कि इस example को how to use it. मतलब मैं free time में यही करती थी, examples कैसे बनाने हैं. और कभी कभी नहीं आता था किसी थ्योरी का, तो I used to do ChatGPT कि इसे हम real life में कैसे apply करें, and I used to write. I also link theories. आई यूज्ड टू लिंक थ्योरीज कि पेपर 1 की पेपर 2 में कैसे कर सकते हैं. इफ़ आई एम रीडिंग गांधी, तो लाइक वो मैकियावेली का कंपैरिजन चलता रहता है. देन आई हैव टू लाइक इंटरलिंक. हैना एरेंट को मे बी कभी कभी रॉल से भी जुड़ जाता था. मतलब ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती जोड़ना है, बट इफ इट्स रेलेवेंट आई यूज्ड टू राइट इट कि कंपैरिजन करके दिखा दिया एक पैराग्राफ में छोटे से. सो इट गिव्स लाइक मोर फ्रेशनेस टू योर आंसर. और वो थोड़े ना वेरी डायमेंशंस हो जाए. एक बंदा सिर्फ थ्योरी लिख रहा है और दूसरा एग्जाम्पल्स लिख रहा है, रेलेवेंस लिख रहा है, किसी से कंपेयर भी कर रहा है. तो दैट रियली गिव्स एन एडेड एडवांटेज. और इसमें और एक बात है, जैसे अगर आपने सिर्फ थ्योरी लिखा है तो ऐसा लगता है कि आपने मतलब रट्टा मारा है. बट अगर आपने एग्जाम्पल्स उसके साथ कनेक्ट किए हैं जो कि आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनिकली आने चाहिए और वो आपके थॉट प्रोसेस से आने चाहिए. वो बहुत सिंपल है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है. लेकिन जब आपके एग्जाम्पल्स और वो डायनेमिज्म आते हैं तो ऐसा रीडर को भी ये लगता है कि ही अंडरस्टूड, उसके पास वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है. और फिर उसका इम्पैक्ट आपके आगे के जो आंसर है उस पर भी पड़ता है कि उसको समझ में आ गया. फर्स्ट 3 to 4 आंसर्स में उसको समझ में आ गया कि द कैंडिडेट हैव द अंडरस्टैंडिंग, लाइक पजेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. तो आगे फिर वो थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब इतना एक पॉइंट देखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती. क्योंकि जैसे अगर मैं भी चेक कर रहा हूँ किसी का पेपर या इवेलुएट कर रहा हूँ, जैसे आपके भी पेपर्स मैंने देखे, काफ़ी लोगों के मैं पेपर्स देखता रहता हूँ, तो मुझे खुद इंटरेस्ट आ जाता है जब लगता है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स. कभी कभी तो लाइक समटाइम्स दे रियली इम्प्रेस. कुछ लोगों के आंसर्स ऐसे इम्प्रेस होते, जैसे आपके आंसर्स में देखता था, आई यूज्ड टू गेट इम्प्रेस्ड कि हाउ कैन यू जस्ट ब्रिंग इन सो मेनी एग्जाम्पल्स इनटू सच थ्योरेटिकल पार्ट्स. लाइक इट इज़ अप्रिशिएबल, बट समटाइम्स आई फील लाइक आई कैन नॉट थिंक द वे यू आर थिंकिंग. जी सर. तो आई यूज्ड टू गेट इम्प्रेस्ड बाय द वे यू थिंक, by the way you connect. So these are very important things. Thank you so much, sir.
एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कई बार एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि वैसे ये सिंपल हमें लगता है, हम सभी को लगता है, लेकिन एक बहुत सीरियस सवाल है कि एक आंसर में कितने स्कॉलर्स यूज़ किए जाने चाहिए। अब मैं तो हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि देयर इज़ नो फिक्स नंबर, देयर इज़ लाइक हमेशा कुछ हो नहीं सकता है। आप कितने भी, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, टॉपिक क्या है उसमें, अगर वो स्कॉलर फीड बैठ रहा है उसमें वो रिलेवेंट है तो। बट आई थिंक इफ़ यू एलेबोरेट ऑन दिस इट विल बी रियली बेटर। जी सर, आई एग्री टू योर पॉइंट। क्योंकि ना सिर्फ सर स्कॉलर्स लिखने से आपको आंसर नहीं होगा। इफ़ यू कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो आप अगर उसमें 10 स्कॉलर्स भी लिखोगे और एनालिसिस नहीं दोगे तो यू विल गेट less marks. I have seen that. Correct. Until and unless you fulfill the demand of the question. तो जो scholars है ना, ये एक तरीके से embellishment है कि it gives like credibility to your answer, कि जो भी आपने justification दिया, जो भी analysis दिया, you can back it up with something कि किसी like renowned scholar ने कुछ बोला है। तो मतलब मेरा कभी भी ऐसे preconceived notion नहीं रहता था कि 10 मार्कर में एक ही लिखना है या मतलब 15 मार्कर में 3 लिखने हैं एटलीस्ट। 20 मार्कर्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें मैंने एक भी स्कॉलर नहीं लिखा, और फिर और ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें 3-4 स्कॉलर्स कोट कर पाई, बट इट वाज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोटिंग, मतलब इट मेंट समथिंग टू द आंसर, मतलब इट एडेड सम, मतलब एक अच्छा एक वैल्यू एडिशन था एक मेरे आंसर को। तो जब रेलेवेंट है मुझे लगता है कि तभी करना चाहिए, अनलेस आपको लगता है कि आप कोई भी आंसर को सिर्फ स्कॉलर से भर के आ जाओगे, स्पेशली इन IR, तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई थिंक समटाइम्स इट मे गो अगेंस्ट यू ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें स्कॉलर्स पता नहीं होते प्रॉपरली, क्योंकि हर एक स्कॉलर का अपना एक थॉट प्रोसेस है। जैसे अगर कोई, जैसे JS मिल अगर लिबरल है और गलती से, क्योंकि मुझे कोई स्कॉलर आ नहीं रहा और मैंने गलती से उसको किसी और डोमेन में डाल दिया, चलो वो फेमिनिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लिबरलिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई कैन नॉट डेफिनेटली सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स इन मार्क्सिज्म। जी सर, करेक्ट, क्योंकि वो दो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस है, एकदम अपोजिट थॉट प्रोसेस है। ऐसे में इट विल नॉट जस्ट गो अगेंस्ट यू, इट विल हैम्पर योर स्कोर और आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि स्कॉलर्स को लेके बी कॉशियस, नॉट नेसेसरी कि स्कॉलर्स यूज़ करने ही चाहिए, ये डेफिनेटली यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन वो जितना नेचुरल और जितना ऑर्गेनिक है उतना ज़्यादा बेटर है। अपार्ट ऑफ दैट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली, एंड आई फोकस मोर अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अभी हो क्या रहा है, मेनली बेटर स्कोर ना आने का और एक जो रीज़न है वो ये है कि क्वेश्चन है कमेंट ऑन द लिबरलिज्म एज अ रिवोल्यूशनरी आइडिया। ठीक है, अब इसमें मैंने क्वेश्चन देखा, क्योंकि मुझे पता है आई हैव द प्रेशर, आई एम अंडर द प्रेशर, आई हैव टाइम कंस्टेंट, एंड एट द सेम टाइम मेरी अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो एक स्पेसिफिक नोट्स से रिलेटेड है, जो नोट्स में मैंने पढ़ा है। तो आई डोंट फोकस अपॉन द रिवोल्यूशनरी एंड एज एन आइडिया एक्सेट्रा, आई ओनली फोकस अपॉन द लिबरलिज्म, एंड दैट टू आई टिपिकली राइट लिबरलिज्म इज द स्कूल ऑफ थॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेनली क्या होता है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है क्वेश्चन का टॉपिक, एक होता है उसका कॉन्टेक्स्ट, और एक होता है उसका जो टेल वर्ड होता है, कमेंट वगैरह। करेक्ट, जो डायरेक्टिव जिसको हम कहते हैं। तो डायरेक्टिव बेसिकली उस टॉपिक को किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना और किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो डायरेक्शन बताता है। और कंटेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लिबरलिज्म के बारे में आप यू कैन राइट 1000 पेजेस 2000 पेजेस, बट लिबरलिज्म यू हैव टू राइट हाउ इट हैज़ बीन अ रिवोल्यूशनरी आइडिया। तो आपको उस कंटेक्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पर टॉपिक भले ही लिबरलिज्म है, लेकिन लिबरलिज्म से ज़्यादा उसका कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो लिबरल आइडियाज़ है उन्होंने बड़े बड़े रिवोल्यूशंस को इंस्पायर किया है। और जब हम रिवोल्यूशनरी की बात करते हैं तो रिवोल्यूशन और इवोल्यूशन में डिफरेंस है। रिवोल्यूशन मतलब थोड़ा सा, उसमें थोड़ा वायलेंट एंगल भी आ सकता है, और रिवोल्यूशन मतलब थोड़ा सा एक एग्रेशन होता है। करेक्ट, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया, तो यू हैव टू टॉक इन दैट पर्सपेक्टिव कि किस तरीके के जो ग्लोबल लेवल पर उस समय रिवॉल्यूशन हुए, दे वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, विच वेर रिलेटेड टू लिबरलिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिमांड द क्वेश्चन, बट व्हाट इज हैपनिंग इज वी डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन, दैट इज द मेन थिंग। फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है, आपने 2 पेजेस आंसर लिखा है, आपने पूरा टाइम दिया है, आपने रिलेवेंट भी लिखा है लिबरलिज्म से, लेकिन लिबरलिज्म क्वेश्चन है ही नहीं। इसीलिए आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जस्ट किसी ने कहा कि आंसर राइटिंग करो तो हम बस लिखते जाते, लेकिन हमें क्रिटिकली देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
आप क्वेश्चन रीड करो, फर्स्ट गो में रीड करो, उसके बाद दोबारा एक बार रीड करो, और टिल द एंड ऑफ योर आंसर, जब तक आप कंक्लूड कर रहे हो तब तक आपके दिमाग में वो क्वेश्चन घूमता रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, एक पॉइंट पे हम एक अलग ही फ्लो में चले जाते हैं और हमारा क्वेश्चन अलग ही रहता है, तो फिर वो ब्रेक आ जाता है हमारे, वो मतलब इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू ऐड, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एक स्टेजेस होते हैं प्रिपरेशन के। फर्स्ट ईयर में तो लोग बस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते, आंसर राइटिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, फिर बाद में रिवीजन ये सब पे फोकस करते। लेकिन एक दो मेंस के बाद जब नहीं मिल पाता सक्सेस हमें, या हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाता है, तब हम इस बात को सीरियसली लेते हैं कि अब हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तब फिर पता चलता है कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि क्वेश्चन की डिमांड भी होती है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, उसको डिकोड करना होता है, फिर डिमांड के अकॉर्डिंग उसको लिखना होता है। और एक्चुअल में जब आप ब्रेक डाउन करते हो चीज़ों को तो, या फिर डिकोड करते हो, तो ज़्यादा ईजी होता है। जैसे अभी हमने कमेंट ऑन दी लिबरलिज्म एज एन रिवोल्यूशनरी आइडिया, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको समझ पाते हो कि तीनों वर्ड्स को आपने डिकोड करने की कोशिश की, टेल वर्ड्स को और बाकी कंटेक्स्ट को, तो आपके लिए आंसर लिखना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है और भी ज़्यादा डायरेक्टेड वे में आप लिख सकते हो। तो तब आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं, एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स, और तब फिर वो रैंक आता है। करेक्ट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्कोर इन जनरल इन PSR, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस जर्नी। पहले आपने इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद फिर से आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और इस बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यू रियली फेल्ट दैट कि इम्प्रूवमेंट तो है, लाइक व्हाट आई एम राइटिंग इज़ डेफिनेटली फार बेटर एंड डिफरेंट दैन आई यूज्ड टू राइट अर्लियर। सो प्लीज़ टॉक अबाउट दिस, लाइक टेल मी अबाउट दिस। जी सर, सो इन थर्ड अटेम्प्ट I took no guidance from anywhere. I have not joined any foundation course. तो I was all by myself. तो मैं जितना little understanding थी, जैसे भी था, तो मैं उस तरह से लिखती थी, because I had a background. तो I got decent marks, I would say 260 marks थे मेरे third attempt में. But then I realized कि अभी थोड़ा improvement है, एटलीस्ट मैं 20-30 नंबर का तो कर ही सकती हूँ एटलीस्ट. So then I joined your program sir, live answer writing का जो था. तो that really helped me a lot, because मुझे realize हुआ कि देन आई रियलाइज व्हेन यू यूज्ड टू से कि कैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट करनी है, कि देन आई रियलाइज कि यार मेरी तो क्वेश्चन की डिमांड मीट ही नहीं होती थी बहुत सारे क्वेश्चंस में. फॉर एग्जांपल यू ओनली गेव वन एग्जांपल इन द क्लास, वो मैकियावेली वाला. फॉर एग्जांपल अ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि डिस्क्राइब मैकियावेलीज व्यू ऑन रिलीजन. दिस इज अ क्वेश्चन. सो व्हाट पीपल वुड से, व्हाट पीपल वुड डू, दे विल राइट अ जनरल इंट्रोडक्शन जो उन्हें किसी फाउंडेशन कोर्स में दे दिया है. आई वुड से कि सबका वही होता है कि वो दे विल राइट अ होल स्टोरी अबाउट इट, कि मैकियावेली ये था, वो इटली से था, उसे निहालिस्ट बोलते थे, वो पूरा लिख देंगे. बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन, वो पूछ ही नहीं रहा है. अगर आप इंट्रोडक्शन में उसकी जगह सिंपली ये लिख दो कि मैकियावेली का इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू था रिलीजन को लेके, बात खत्म. एग्जामिनर को समझ में आ गया कि तुम्हें पता है कि क्या मतलब क्या पूछा जा रहा है, एंड यू नो, एंड यू विल राइट रेलेवेंट. द एग्जामिनर विल होप दैट. आप पूरी कहानी लिखोगे, लाइक पीपल विल राइट समथिंग अबाउट मैकियावेली, 2 पेज भर देंगे. बट अगर उन्होंने डिमांड हो तो क्वेश्चन कि क्या व्यू था रिलीजन के बारे में, आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में दे दिया सर कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू था रिलीजन को लेके, कि रिलीजन कुड बी यूज लाइक एज अ मीन्स टू अचीव हायर एंड्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू हाउ टू मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल आपकी आंसर, जब लाइव आंसर राइटिंग क्लासेज होती, यू डिस्क्राइब दोज टेल वर्ड्स कि कॉमेंट में क्या करना है ना. लाइक बहुत सारी वो सब चीज़ें थी कि इम्पैक्ट पूछा है तो ये सब कैसे करना है. तो दैट रियली हेल्प मी कि अच्छा पहले कमेंट पूछा है तो पहले लिख दिया, फिर उसके प्रोज होंगे, फिर कुछ कॉन्स होंगे, एंड देन यू गिव योर मतलब. तो दैट रियली यस सर. तो मतलब आपकी जो लाइव आंसर राइटिंग थी उसमें मतलब मुझे समझ में आया था कि कैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट करनी है. तो पहले तो मैं से लाइक मुझे लगता है कि 260 मेरा शायद स्कोर इसलिए रहा था बिकॉज आई कुडंट मीट लाइक द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस. कुछ मतलब क्वेश्चंस में मैं डिमांड नहीं मीट कर पाई थी. तो देन आई मेड इट अ पॉइंट आफ्टर योर लाइव, मतलब मैं तभी आंसर राइटिंग करती थी बिकॉज योर कोर्स वॉज वेरी एक्सटेंसिव. तो उसके अलावा मुझे आंसर राइटिंग करने का टाइम नहीं मिला. तो मैंने जितनी आंसर राइटिंग करी थी वो आपके कोर्स के थ्रू ही लाइव आंसर राइटिंग करते थे हम लोग. तो उस टाइम सर मैंने बिल्कुल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसे मीट करनी है, लाइक इंट्रोडक्शन में आई जस्ट मतलब ये मेरा रूल था कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन में लिख देना है कि जो भी पूछा है ना उसे क्रक्स में दे दो कि एग्जामिनर को पता लग जाए. और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उसके फैक्टर्स बताओ. तो मैं पूरा एक तो होता है लिखना, और मैं दिखाती थी एग्जामिनर को, दिखाना भी होता कि यू आर मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो मैं ऐसे पॉलिटिकली ऐसे लिख के ना, एंड आई यूज्ड टू सर्कल इट और लाइक क्लोज इट इन अ बॉक्स.
यू वुड सी इन माई आंसर्स लाइक व्हेन आई विल शेयर. Yeah. तो ऐसे पॉलिटिकल करके मैं लिख देती थी एक पैराग्राफ, देन सोशल, फिर उसे अंडरलाइन कर दिया या उसे बॉक्स बना दिया. तो आई वॉज शोइंग द एग्जामिनर ऑल्सो कि भाई मैं फुलफिल कर रही हूँ सारी डिमांड, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं वेवर होती नहीं थी फिर उसके बाद. मतलब इस टाइम आई हैव रियलाइज कि अभी आई डोंट नो हाउ मच स्कोर आई हैव गॉट, बट मैंने लाइक आई हैव ट्राइड लाइक माई लेवल बेस्ट कि सिर्फ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे ही लिखना है. मैं मतलब बिल्कुल नहीं जाती. आई यूज टू मतलब पीपल मैंने देखा है बच्चे की 1-2 पैराग्राफ्स अपने वेस्ट कर देते हैं. बिल्कुल मत करो, स्पेशली इन 10 मार्क. मतलब जैसे 10 मार्कर्स होते हैं, इंट्रोडक्शन दे विल राइट इररेलेवेंट, फिर 1-2 क्वेश्चंस वो सोचता है कि ऐसे लिख देते हैं कुछ भी मैकियावेली के बारे में. मैकियावेली के बारे में तो पूछा है, इवन इफ द क्वेश्चन इज अबाउट रिलीजन, उसका व्यू ओवर, तो दे विल राइट लाइक सब कुछ जनरल अपना कि उसने स्टेट क्राफ्ट लिखी थी, फिर उसके प्रिंसिपल्स देने लगेंगे, विच इज नॉट आस्क्ड. आप कितने भी प्रिंसिपल्स लिख लो, अगर आपने रिलीजन का नहीं वो मतलब डिमांड फुलफिल की, तो यू विल नॉट गेट मार्क. तो मैं बिल्कुल, और स्पेशली 10 मार्कर्स में सर, बिकॉज 2 ही पेज मिलते हैं, उसमें बिल्कुल डिमांड, बिल्कुल फोकस दिमाग से आई जस्ट यूज टू राइट कि जो पूछा, व्यू ऑफ रिलीजन. और ऐसा होता है ना कि सर कंटेंट कभी कभी कमी पड़ जाती है कंटेंट की, तो उस समय ना जनरेट करना होता है. आई रियलाइज दिस इन दिस अटेम्प्ट, क्योंकि हम जीएस में भी तो सर ऐसे ही करते हैं, हमें सारे आंसर्स नहीं पता होते ना, वी जनरेट पॉइंट्स एंड फिर जो भी हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं वी ट्राई टू कनेक्ट एंड ऑल. तो मतलब मुझे थर्ड अटेम्प्ट में लगता था कि जो मेरे पास नोट्स है ना उसी से ही आना चाहिए, मतलब जो आएगा उसी से ही आएगा. मतलब मैं मतलब आई डेंट इवन हैव इन माई माइंड कि मैं ऐसे कॉन्टेंट भी जनरेट कर सकती हूँ. इन द आंसर राइटिंग क्लासेज आपने बताया कि ऐसे कॉन्टेंट भी जनरेट कर सकते हैं अपने. तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो व्हेन आई यूज्ड टू रीड अ क्वेश्चन तो वो दिमाग एकदम चर्न करने लगता था कि हाउ कैन आई मेक पॉइंट्स. पॉलिटिकल साइंस आपकी अंडरस्टैंडिंग भी, एज आई सेड, कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो पूरा है कि रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करें. आई यूज्ड टू राइट एग्जांपल्स. तो सर या हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मेंशन कि कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है. जी सर. वो जितना आप स्किल डेवलप करोगे उतना सही है, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो देयर विल बी क्वेश्चंस जो आपको लगेंगे, और मोर देन 50% क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि ये आपके प्रिपरेशन के थोड़े से बाहर के हैं. नॉट कम्प्लीटली, टॉपिक सेम हो सकते हैं लेकिन कंटेक्चुअली और अदरवाइज भी वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं. इसीलिए कंटेंट क्रिएट करना आपको आना चाहिए. इसके लिए इंटरलिंकेजेस, चीज़ों को रिलेट करना, जैसे you should be able to do couple of things on the spot. For example, जैसे स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया कि पॉलिटिकल साइंस इज अ डिबेट. लाइक स्टेट की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, या जस्टिस की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है. कम्युनिटेरियन के पर्सपेक्टिव से जस्टिस टोटली डिफरेंट आइडिया है, लिबर्टेरियन के पर्सपेक्टिव से टोटली डिफरेंट आइडिया है, और फिर लिबरल्स जो है जैसे जॉन रॉल्स, उनके पर्सपेक्टिव से, सोशल लिबरल्स के पर्सपेक्टिव से वो डिफरेंट है. सो इट्स अ कंटिन्यूअस डिबेट, और वो डिबेट में आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स आते रहेंगे. इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स. आपको सभी पर्सपेक्टिव्स एक बार समझ में आ गए तो यू कैन, लाइक हन्ना अरेंट के साथ आपको ग्राम्स्की के व्यूज़ को कंपेयर करना खुद आना चाहिए, नॉट नेसेसरीली कि आपको कोई पूछे फिर आप सोचो. सो दिस इज़ द थिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. PSR में जैसे थेरीज और करंट इवेंट्स दोनों को हमें लिंक करना होता है, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया है. बट फिर भी हम कितना भी डिस्कस करें, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इसको कैसे लिंक करें, हाउ टू लिंक. जैसे आपने बताया कि हाँ, ये मैंने थ्योरी ऑफ केव्स जो है, एलिगरी ऑफ केव्स मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने उसको रिलेट किया. बट स्टार्टिंग के फेज में ये नहीं आता है. वो अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद वो आपको आता है. बट टू दोज एस्पिरेंट हु फील कि मुझे नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है और कैसे आपको आएगा और कब, किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आएगा, प्लीज़ टेल मी. सो सर, सॉरी सर, आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि मैंने बताया नहीं. आई हैव माई बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी सब्जेक्ट की. सो पीपल हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, हु हैव नो आइडिया अबाउट एनी थ्योरी, रॉल्स की क्या थ्योरी है, हन्ना अरेंट की क्या थ्योरी है. सो फर्स्ट दे नीड टू लाइक डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग, दे हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. तो वो एकदम से वो नहीं आएगा. तो मे बी आई वुड से कि एटलीस्ट 2 रिविजन्स इट वुड टेक. फर्स्ट एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लो, और दूसरी बार रिवाइज कर पाओ ना, देन योर ब्रेन विल स्टार्ट चर्निंग कि अच्छा, देन यू कैन ऑटोमेटिकली रिलेट थिंग्स. इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी न्यूज़पेपर में है, अब वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है सर. तो डेफिनेटली ये बात तो है कि जितना अंडरस्टैंडिंग होगा, यहाँ पर अब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि इस पूरे प्रिपरेशन में if there is any single factor which everyone lacks is the patience. जी सर. सबको लगता है कि मुझे तुरंत मिलनी चाहिए चीज़. जी सर. आंसर राइटिंग भी कल ही होनी चाहिए. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ प्रोसेस. जी सर. ये एक प्रोसेस है और इसको एक टाइम लगने वाला है. जी सर. कोई मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटोर के पास जाओ, आपके साथ 2-3 साल के ऑल इंडिया रैंक 1 भी आपके साथ बैठे हुए होंगे, तो भी
देर इज़ नो अदर वे, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको वो पेशेंस डेवलप करने पड़ेंगे। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे अभी नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है, दैट डजंट मीन कि मुझे कभी अंडरस्टैंड नहीं होगा, मुझे अंडरस्टैंड होगा, लेकिन आई विल हैव टू जस्ट कंटिन्यूसली कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। पीएसआर के करंट अफेयर्स के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पीएसआर के करंट अफेयर्स का, जैसे अभी तो हमारे पास एक सोर्स है, हम पीएसआर बुलेटिन, हमारे पीएसआर सिविल्स फ्रंट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम प्रोवाइड करते हैं। पीएसआर बुलेटिन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आगे के भी जो कुछ है उसका ईयरली कंपाइलेशन भी हम हर साल प्रोवाइड करते हैं। प्लीज़ टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, ईयरली कंपाइलेशन, बिकॉज मेनी पीपल रीड ड्यूरिंग द मेंस। जी सर, तो दिस टाइम आई कुडंट रीड न्यूज़पेपर बिकॉज मैं उस साइकिल में थी 2023 की, सो आई हैड लाइक लिटिल टाइम। प्रीलिम्स बिल्कुल 20 दिन बाद था, फिर मेंस था, तो बिल्कुल टाइम नहीं था, तो आई वाज नॉट अवेयर विद द करंट अफेयर्स एंड ऑल, एंड आई हैड टू डू वैल्यू एडिशन, क्योंकि थ्योरी है बट उसको वैल्यू एड भी करना होता है करंट अफेयर्स के, एंड स्पेशली इन द सेकंड पार्ट विच इज़ मोर डायनेमिक। सो योर दैट ईयरली बुलेटिन really helped me a lot. I'm emphasizing on that word because जितना भी वैल्यू एडिशन था पेपर 2 में मेरा, more specifically to the 2B part, international relations का, I scroll, there was 2 videos sir, so I watched those videos जो आपने yearly bulletin की ही बनाई थी as in the video format, and I noted all of those जो current affairs थे ना, कि for example there was a topic SARC, तो उसमें recent में क्या हुआ, तो I added it in my like main notes, and I could actually use them in the actual examination. और like बहुत वो relevant content था कि साक का कुछ अहमदाबाद में आ गया डिज़ास्टर सेंटर ना कुछ, तो ये तो बहुत relevant है सर, मतलब बिल्कुल फ्रेश और डायनामिक है, तो आई कुड एक्चुअली यूज दीज थिंग्स। मतलब जितने भी स्टैटिक पोर्शन थे मैं वो बस आई यूज टू स्क्रॉल थ्रू देम, और जो भी करंट अफेयर्स था यू हाईलाइटेड दोज थिंग्स, तो बस मैंने वो सब कुछ मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया। सो थोड़ा इसमें मैं ये भी बोलूँगी, थोड़ा एकदम से अडेप्ट करना होता है, अगर आपने नई करंट अफेयर्स किए जैसे मेरे जैसे, तो अगर सर प्रोवाइड कर रहे हैं ईयरली बुलेटिन, तो उसमें से मतलब यू हैव टू बी प्रूडेंट इनफ कि क्या रेलेवेंट है और सब लिख लो उसमें, एंड जस्ट रिप्रोड्यूस इट, तो इट रियली बेनिफिटेड मी अ लॉट सर। लास्ट ईयर भी और इस साल भी मैंने क्या किया था करंट अफेयर्स में, बिकॉज आई न्यू कि टाइम कम है और अपडेटेड चाहिए, रिसेंट वाला एकदम लेटेस्ट चाहिए, तो पूरा जो बुलेटिन अगर 200 पेज का, तो उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करके मैंने वो पीडीएफ शेयर किया था। करंट अफेयर्स में यही एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को लगता है, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत चैलेंजिंग है, और मैं पर्सनली ये इतना सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। जी सर, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ा। चैलेंज ये है कि आपको पता नहीं होगा कि इसमें से कितने आर्टिकल्स काम के हैं, वो कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है। उसी के साथ साथ उसको हमारे सिलेबस के किस टॉपिक के साथ वो लिंक्ड है, वो लिंक करना भी एटलीस्ट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक मेरे किस टॉपिक से रिलेटेड है। प्लस मैंने वो न्यूज़पेपर पढ़ भी लिया, तो आज का मैंने पढ़ लिया, कल का मैं कल पढ़ूंगा, परसों का परसों पढ़ूंगा, तो उसके बाद मुझे जो आज का पढ़ा वो बाद में मुझे याद नहीं रहेगा। उसका एक होता है ना कंसोलिडेशन और आर्टिकुलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि साल भर का फिर इतना सब कुछ नहीं कर पाते। तो फिर अगर करंट अफेयर्स का मतलब न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े, तो फिर पीएसआर बुलेटिन जो मैं सजेस्ट करता हूँ, करेक्ट, वो एक बेस्ट सोर्स है। लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर्स में पीपल become very much cautious about minor things, like अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है और ये अभी 2-3 साल से चल रहा है, हर एवरी सेकंड डे देयर इज़ अनदर आर्टिकल। नॉट नेसेसरी कि आप हर आर्टिकल पढ़ो, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर जो भी माइन्यूट जो डेवलपमेंट्स हुई है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आई वांट टू फोकस मोस्टली ऑन दिस कि करंट अफेयर्स को आप माइक्रो लेवल पर उसको मत ज़्यादा लेके जाओ, आप मेजर डेवलपमेंट्स की बात करो कि ट्रंप ने आज क्या किया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंस्टेड ऑफ की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की, जैसे अभी NSS नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उन्होंने रिलीज की, तो वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। बट एवरी सेकंड थिंग विच इज़ कमिंग इनटू द न्यूज़पेपर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, एटलीस्ट इट इज़ नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट टू बी मेंशन इन द आंसर्स। तो आंसर्स में हम कितना यूज़ कर सकते हैं आप वो भी देखो, तो इस हिसाब से थोड़ा सा करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो क्या फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, या फिर हम वो स्किप कर सकते हैं, बुलेटिन जैसे सोर्सेज पे रिलाई करके क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? सर आई वुड से आई डेंट हैव टाइम टू रीड न्यूज़पेपर, मतलब मैंने इस साल पढ़ा ही नहीं था न्यूज़पेपर, सो योर बुलेटिन वाज द ओनली सोर्स। बट आई वुड से कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो जाती है, तो आप पढ़ते रहो। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय थर्ड अटेम्प्ट वाज कि देयर इज एन आर्टिकल बाय सीराज अमोन और समबडी हु इज लाइक सम मेकिंग सम पॉइंट्स, और आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा एंड विच यू कैन एक्चुअली यूज इट इन योर एग्जाम। सो ओनली इफ यू कैन यूज इट इन सम आंसर, या किसी आपका वो
ओवरलैप कर रहा है सिलेबस के साथ, तो आई यूज टू लाइक मेक नोट्स आउट ऑफ इट कि ही यूज टू गिव लाइक वेरी स्पेसिफिक वर्ड फॉर कुछ, या कुछ आइडिया डेवलप किया है तो वो बोलते थे, तो जस्ट मैं वो जस्ट पिन पॉइंट मतलब पिक आउट कर लेती थी एडिटोरियल्स में से कि जो मैं यूज़ कर पाती थी, दैट्स इट सर। मतलब वो तो, और जो इंटरनेशनल पेज है वो इंपॉर्टेंट है बस जस्ट टू नो कि क्या चल रहा है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि जो यूपीएससी है वो करंट डेवलपमेंट्स नहीं पूछती है, वो करंट अफेयर्स पूछती है टोटल, कि मतलब आज ट्रंप ने क्या बोला, वो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट कीप इन, यू जस्ट बी इन टच विद दैट। बट जो करंट अफेयर्स के क्या चल रहा है ईरान का और इजराइल का, और व्हाट इज़ द यूएसए's रोल, तो दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। रोज़ की डेली दैट ट्रंप इज़ वार्निंग समबडी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो करंट अफेयर्स एज इन होल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एज अ एकदम सीरियस एस्पायरेंट जब कोई होता है स्टार्टिंग में, तो वो उनको नहीं इतना अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स को वो सीरियस लेते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बारे में, और तो उससे क्या होता है, रिडंडेंट होता है, टाइम ज़्यादा, एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है, और जो यूज़फुल जो आपको टॉपिक्स पढ़ने वो हम नहीं पढ़ पाते, इग्नोर करते हैं। इसका और एक इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्यों इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम इग्नोर करते हैं प्रिपरेशन में, और जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे करंट अफेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइप थिंग इन द मार्केट, बहुत उसको हाइप किया गया कि करंट अफेयर्स, जबकि आप कोई भी क्वेश्चन देखो आपको ये रियलाइज़ होगा कि स्टैटिक करंट के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। जी सर, इतना डिफरेंस है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम बात करें, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, कितने मेंबर्स, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है, और जो बेसिक पॉइंट्स, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके पावर्स क्या है, ये हमें पता होना ही चाहिए, जो स्टैटिक का पार्ट है जिसको हम इग्नोर करते हैं। और अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हैज़ बीन अ टूथलेस टाइगर और एक्सेट्रा, वो अगर आपको इलेबोरेट करना है तो आपको रिसेंट के कुछ एक दो एग्जांपल्स चाहिए होंगे, नॉट नेसेसरीली कि आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर ही चाहिए। तो ये एक मिसअंडरस्टूड पार्ट है, एंड फॉर दैट आई थिंक जिसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड होगी उसको एग्जैक्टली पता होगा कि कितना पढ़ना है, मतलब कितना लेंथ में जाना है हॉरिजॉन्टल ऐसा, और कितने डेप्थ में जाना है वर्टिकल। सो द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल जो अपना एक हॉरिजॉन होता है प्रिपरेशन का, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज देन देयर इज अ सेइंग दैट यूपीएससी प्रिपरेशन इज समथिंग लाइक एवरीथिंग अंडर द सन, बट इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग, और एवरीथिंग अंडर द सन इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो आपको ये बाउंड्रीज पता होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिसके लिए सिलेबस, बट सिलेबस के साथ प्रॉब्लम ये कि सिलेबस यूपीएससी ने जो दिया है वो बहुत ही प्रिसाइज है, लाइक देयर इज़ एक स्टेट है और उसकी डिफरेंट थेरीज, ऐसा इतना ही उन्होंने कहा है, लिबरल, फेमिनिस्ट एक्सेट्रा। बट फिर लिबरल में स्टेट की जो थेरी है उसमें और क्या पढ़ना चाहिए, करेक्ट। जैसे उन्होंने जस्टिस टॉपिक बताया है सिलेबस में, और विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू रॉल्स, करेक्ट। बट फिर रॉल्स थ्योरी में ओरिजिनल पोजीशन भी है, वेल ऑफ इग्नोरेंस भी है, उसके 2 प्रिंसिपल्स भी है, उसका काउंटर लाइक क्रिटिसिज्म भी है, और फिर रॉल्स ऑल्सो केम बैक विथ हिज आंसर। तो ये चीज़ें पढ़नी है, ये हमें नहीं पता होता है। ये हमें तब पता चलता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा डिकोड करते हैं, जिसका मतलब मैंने अपने यूट्यूब पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिकोड करके प्रोवाइड किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई पर्सनली बिलीव दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मेरा पूरा का पूरा गाइडेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा मैं दूसरा कुछ बात ही नहीं करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर लाइक जीपीएस। वो आपको बताएंगे कौन से डायरेक्शन में जाना है, किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, वहीं से आपको पता चलेगा। और क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू इन दिस इंटरव्यू ऑल्सो कि हमने 2-3 महीने पहले प्राची ने और हमने एक जो, क्योंकि लास्ट ईयर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैंड रिटन मॉडल आंसर्स बनाए थे विथ 1 पेजर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़। बट क्योंकि लास्ट ईयर के आंसर्स में कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने दोनों ने पढ़े थे, तो हमें लगा समवेयर कि ये थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। सो दिस ईयर वी आर कलेक्टिवली कमिंग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स हैंड रिटन बाय प्राची ने खुद सारे आंसर्स लिखे हुए। प्लीज़ उसके बारे में भी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड देन कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पढ़ना, और जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स हैंड रिटन लिख रहे हैं, जो कि अभी 1-2 महीने में मार्केट में आ जाएंगे, उसके बारे में भी प्लीज़ टेल अस। So PYQs are really important. In your classes, we only used to do PYQs, no Correct. extra question. Correct. I remember that those mini tests and those full length tests revolved around PYQs. So it was just PYQs. Correct. So in those like 2.5 months, we only did PYQs, and that really helped because the syllabus is so vast that we tend not to write like so many answers. Correct. But since we were writing only PYQs, so we covered like extensively. Correct. पूरा तो
ये होता है कि थीम्स भी रिपीट होती हैं सर PYQs की, करेक्ट बिल्कुल थीम्स और एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं PSIR में। करेक्ट ऑल्दो अभी थोड़ा चेंज आ रहा है मतलब चीज़ों में कि अब क्वेश्चंस थोड़े ऐसे आ गए कि यू हैव टू थिंक एट द स्पॉट, बट उसका रेलिवेंट उतना ही रहेगा, मतलब जो PYQs है वो उतने ही रेलिवेंट रहेंगे, Correct. क्योंकि वो थीम्स है वो सब तो सब रिपीट होता ही है। करेक्ट कमिंग टू दैट आई रियलाइज़ कि ऐसे PSIR के लिए ना मतलब ऐसे कोई नहीं है कि PYQs किसी ने ऐसे प्रॉपरली लिखे हों विद मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि Correct. बहुत सारे मतलब आंसर्स हैं मार्केट में, बट वो दोज आर नॉट ऑफ दैट क्वालिटी Correct. कि उनमें रेलेवेंस मिस है, मतलब एक एडिट डायमेंशन होता है वो मिस्ड है, इंट्रोडक्शंस आर आउट ऑफ द जोन, कुछ कंक्लूजन कुछ और है। Correct. सो तो what I did, I used to write answers meeting the very core demand of the questions, and I have written very enriching answers like theories, examples को मैंने उससे बैकअप किया है। एंड जैसे बहुत सारे जस्ट व्हेन वी रिवाइज तो एकदम से समझ में नहीं आता कि पूरा आंसर कैसे पढ़े, तो आई हैव ऑल्सो गिवन द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक क्वेश्चन की एक पेज पे कि इंसान को पता लग जाए कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा है कि रॉल्स की जस्टिस है फॉर एग्जांपल, तो आई हैव गिवन ऐसे आई हैव डन ब्रेनस्टॉर्मिंग कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो इफ एनीवन वांट्स टू रिवाइज द आंसर दे कैन जस्ट सी दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट एंड दे कैन रियलाइज कि अच्छा आंसर लिखना है। तो सब फॉर एग्जांपल देयर आर क्वेश्चंस जिसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं, तो आई हैव लाइक ऐसे अलग अलग करके मैंने लिखा है कि फर्स्ट पार्ट की क्या क्या हम पॉइंट्स बना सकते हैं, सेकंड पॉइंट के हम क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हैं, तो फिर वो एस्पिरेंट को मोर क्लैरिटी मिलती है अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि अच्छा इसको आंसर कैसे लिखना है, बिकॉज देन तो हम सोचते हैं कि आंसर ही तो है मतलब ठीक ही है, बट व्हेन वी सी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से पता लगता है कि हमारी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट हो रही है। तो यस सर। तो जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बार मतलब टाइम नहीं होता है ज़्यादा, वो 3 मंथ्स 2.5 मंथ्स 3 मंथ्स का ही टाइम होता है, और ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ही कम होती है, पुअर होती है, एंड आई यूज़ टू सजेस्ट देम कि आप एक काम करो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो PYQ के सॉल्यूशंस पढ़ लो, क्योंकि उससे आपके टॉपिक्स भी रिपीट हो जाएंगे और PYQ मिस आउट होने का भी जो एक फियर है वो भी नहीं रहेगा। तो व्हाट यू सजेस्ट कि जो PYQs अभी आप लिख रहे हो, जो आपने ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट किए हैं, तो हाउ कैन स्टूडेंट यूटिलाइज देम फर्स्ट थिंग, और ऐसे स्टूडेंट जिनको लास्ट मोमेंट रिवीजन भी करनी है, तो क्या PYQ के सॉल्यूशंस, क्योंकि वो आई थिंक 2013 से लेके 2025 तक के अपडेटेड है, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 साल के हैं, तो विल दैट बी सफिशिएंट कि सारे टॉपिक्स भी हमारे कवर हो जाए मैक्सिमम, और एक अंडरस्टैंडिंग भी मिले कि कैसे आंसर लिखना है, और एक कंटेंट का भी कवरेज हो जाए? जी सर, तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट एस्पिरेंट्स टू राइट आंसर्स देमसेल्व्स। ओके, कि वो अपने आप लिखे कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हाउ दे आर राइटिंग, वेदर आर दे एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो वैलिडेशन कर पा रहे हैं, वो काउंटर पर्सपेक्टिव दे पा रहे हैं, रेलेवेंस दे पा रहे हैं। वंस दे राइट द आंसर देन यू कैन रेफर दीज हैंड रिटन आंसर्स दैट आर रिटन बाय मी, सो यू कैन कंपेयर एंड सी कि कहाँ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कहाँ लैक कर रही है, एंड आपको कुछ नया कॉन्टेंट, क्योंकि बिकॉज द कॉन्टेंट इज वेरी एनरिच्ड, सो इफ यू सी करंट अफेयर्स कुछ रेलेवेंस देन यू कैन एड इट बैक टू योर ओरिजिनल सोर्स, अपने ओरिजिनल नोट्स में उसको फिर ऐड कर ले। एंड ये है कि PYQs अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या है। तो जैसे आपने बताया कि अगर लोगों के पास टाइम नहीं है कि पूरी ऐसे प्रिपरेशन करें, तो सिर्फ PYQs एक बार पढ़ लो, वही सर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हैं। इवन जो आपने लिखा है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो आपने मुझे भेजा है, उसमें अगर हम देखेंगे तो 500 to 600 पेजेस का एक सेक्शन है, पेपर 1 सेक्शन ए। आई थिंक दैट कवर्स अ लॉट ऑफ कंटेंट, तो वो इनफ हो जाएगा डेफिनेटली। इसके अलावा ये हो गया हमारे PSR के PYQ का। उसके अलावा देखो मेंस के वक्त हमने भी काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, काफ़ी हमने सेशंस लिए थे, डिस्कशंस किए थे, एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि आपके आंसर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। आपने जैसे कि मेंशन किया कि आंसर्स के थ्रू आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस पॉइंट कि जो आंसर्स, जो हैंड रिटन आंसर्स है, एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की आइडियाज़ की वजह से आप पूरा रिकैप कर सकते हो पूरे टॉपिक को 1 पेज में, तो एक सिंगल पेज रिवीजन वाला जो पार्ट है वो उसमें हो जाता है। सेकेंडली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वैल्यू एडिशन, मेनली क्वेश्चन ये होता है क्योंकि लास्ट अभी 2-3 महीने हैं, वैल्यू एडिशन कहाँ से करेंगे, कौन सा सोर्स है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स जो आपने यूज़ किए उससे वैल्यू एडिशन हो सकती है। सो यू यूज टू से कि सर आप थोड़ा क्रिटिकल थोड़ा मुझे कमेंट दो, लेकिन every time I used to see your answers, I used to get impressed because there was improvement every time. So your answers were definitely fabulous. Thanks. And we discussed so many answers. We had multiple sessions for that, Yes, sir. as we know. So how the discussion part also, because
मैं ज़्यादा इस पर फोकस करता हूँ। अगर मुझे कोई कैंडिडेट लगता है कि सीरियस है और सिंसियर है, तो आई गो आउट ऑफ द वे एंड अ पार्ट ऑफ द क्लासेस ऑल्सो आई डिस्कस विद देम, क्योंकि मुझे भी फिर वो एनरिचिंग लगता है, क्योंकि आपके आंसर्स पढ़ के मुझे भी काफ़ी एनरिचिंग लगता था कि ओके इस तरीके से भी सोच सकते हैं। बट दोज डिस्कशंस विच वी यूज टू हैव थ्रू गूगल मीट और एल्स, हाउ दे हेल्प लाइक दैट इज़ बिकॉज आई थिंक हमेशा जो मैं जितना समझता हूँ एस्पायरेंट्स को, ठीक है आप मॉडल आंसर दे दोगे, ओके दे आर हैप्पी, बट दे आर मोर हैप्पी व्हेन यू पर्सनली टॉक टू देम एंड यू टेल देम कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या लिखा है और इसको कैसे और लिखा जा सकता है. दैट रियली लाइक is like this side of the table, I feel it is just another student, but for the student who is sitting at the another side of the table, for him or her it is a very significant like moment of his preparation. So like what you say about this? I would like to thank you sir for because you went out of the way to help me. I would say like apart from the classes, you created a space where I could just text you anytime कि सर ये आंसर प्लीज़ मेरा चेक कर लो, या सर इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट आई कैन राइट. सो यू आर ऑलवेज अवेलेबल सर, एंड आई नो आई हैव लाइक मैंने बहुत परेशान किया है आपको, बहुत सारे आंसर सर चेक कर दो. सो वी यूज़ टू गो ऑन अ गूगल मीट एंड यूज़ टू पर्सनली चेक माई आंसर्स एंड टेल मी कि अच्छा यहाँ पे ये आंसर अच्छा है, इसमें ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, या यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो. सो that really helped me, and plus it was like a moral booster for me कि सर ऐसे बोल रहे कि अच्छा आंसर्स लिखे हैं तो हाँ आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो सर बहुत मतलब वो पर्सनल जो एक आंसर्स को देखते थे आप, तो बहुत सही रहा मेरे लिए, मतलब क्योंकि वो बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस मिल गई कि अच्छा इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते. ओके सर. PSR में हमने स्कोर इम्प्रूवमेंट की बात की. PSR में व्हाट एल्स यू थिंक, एक हो गया वैल्यू एडिशन जो हम मॉडल आंसर्स के थ्रू, जो हैंड रिटन मॉडल आंसर्स है उसके थ्रू कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली करंट अफेयर्स को लिंक करना, ये हो गया. थर्ड इज़ आंसर राइटिंग की इंटेंस प्रैक्टिस. फोर्थ इज़ कंटिन्यूस रिविज़न. उसके अलावा व्हाट एल्स यू थिंक, बिकॉज देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स जो 250, 240, 230 में स्टक है, बट समवेयर वी नो कि एक डिसेंट स्कोर लाइक 260 प्लस 270 अगर स्कोर होता है तो दैट हेल्प्स यू इन मेनी अदर वेज, लाइक आपकी रैंक इम्प्रूवमेंट से लेके हर चीज़ में. कैसे हम ये जो, क्योंकि 150 to 200 मार्क्स लेना इज़ सिंपल, लेकिन 200 के अबोव 10 मार्क्स का जो 210, 220, 230, ये 10 मार्क्स का जो एक एक्स्ट्रा स्लैब जो हमें ऐड करना होता है, उसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल है. जी सर. 200 मार्क्स के लिए उतना स्ट्रगल नहीं है जितना 210 से 220 और 220 से 250 से 260 में लेके जाने में है. जी सर. वो कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं? सर एज यू मैंशन दीज 4 पॉइंट्स, मतलब अगर कोई कैंडिडेट सीरियसली इन चीज़ों को ही कर ले तो इट विल बी मोर देन इनफ. आई वुड से कि आप स्टैटिक को रिवाइज करते रहे प्रॉपरली, वैल्यू एडिशन कर लीजिए, लिंक थ्योरीज, ऐड करंट अफेयर्स. अगर इफ़ यू आर मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस देन यू विल गेट मार्क्स. आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम विद कैंडिडेट्स इज दे डोंट मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड देन दे एक्सपेक्ट कि मैंने तो पढ़ा था, मैंने तो मैकियावेली के बारे में लिखा भी, बट मुझे मार्क्स नहीं मिले. दे डोंट रियलाइज दे आर नॉट मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आई वुड से अगर आपके 260 तो आ ही जाएंगे इफ़ यू आर मीटिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. इवन इफ यू आर जस्ट मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कुछ आप ऐड नहीं कर रहे हो, वैल्यू एडिशन और वो सब, मतलब इट इज़ ईजी. जैसा लगता है कि इतना हार्ड है, इतना हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा ईजी ही है. जस्ट मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एनरिच इट, रेलेवेंस लिखो, उसका क्रिटिसिज्म लिखो. मतलब इतना कॉन्टेंट है आंसर की बिल्कुल, मतलब इसे लगता है एस्पिरेंट्स को मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं, इतना कंटेंट है कि वो 2 पेज या 3 पेज कम पड़ जाते थे मुझे तो लिखने के लिए कि मैं अच्छा ये भी ऐड कर सकती. आई जस्ट हैड टू श्रिंक एवरीथिंग. तो यस, विद रिलेटेड टू दिस 20 मार्कर क्वेश्चन होता है तो लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पे 20 मार्कर में इतना कंटेंट कहाँ से लाए, तो इसीलिए दे टेंड टू राइट समथिंग डिफरेंट, लाइक हिस्ट्री लिखेंगे, कुछ पूरी कहानी लिखेंगे. एंड आई ऑलवेज से कि मत करो ये सब, क्योंकि आपके स्टार्टिंग के 1-2 पैराग्राफ में जो रीडर है वो बोर नहीं हो जाना चाहिए. तो यू हैव टू बी वेरी लाइक, बोर हो जाना एक बात हो गई, लेकिन एक बैड इंप्रेशन इसको कुछ नहीं आता, इसीलिए रीडर तो ही इज़ द एक्सपर्ट, तो ही और शी इज़ द एक्सपर्ट, तो डेफिनेटली द पर्सन नोज अबाउट द टॉपिक. और आप जो लिख रहे हो वो अगर बहुत रिडंडेंट है तो ही मे नॉट जस्ट गेट बोर्ड, बट ही मे ऑल्सो गेट अ इंप्रेशन कि इसको कुछ नहीं आता, एंड ही इज ट्राइंग टू जस्ट मैनिपुलेट. सो
इसके थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि प्लीज़ आप ये सब मत करो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो 15 मार्क्स का, नॉट नेसेसरी कि आपको पूरे 4 पेज या 3 पेज भरने ही है। आखिरी की जो लास्ट की जो स्पेस है वो अगर खाली भी रहेगी तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट जो भी लिख रहे हो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन इट मस्ट फील कि ही इज़ ऑन द लाइक पॉइंट, वो फीलिंग आना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है जो थोड़ा सा मिस आउट हो गया, जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, पर्सनल और फाइनेंशियल एक्सेट्रा। अ पार्ट ऑफ दैट बीइंग अ विमेन, बीइंग अ गर्ल, देयर आर ऑल टुगेदर एक्स्ट्रा चैलेंजेस। लाइक कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो एक मेल कैंडिडेट को प्रिपरेशन करने में डेफिनेटली उसको भी सवाल होते हैं कि भाई उम्र हो गई, जॉब करो, पैसा कमाओ, प्रिपरेशन में लगे हो। बट एट द सेम टाइम वुमेंस के भी जैसे होता है कि बहुत ही अर्ली एज में शादी को लेके प्रेशर या ऐसे काफ़ी लाइक होते हैं। तो व्हाट यू थिंक लाइक एज अ विमेन कैंडिडेट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस, बिकॉज ये प्रिपरेशन इट मे गो समटाइम्स 3 to 4 years ऑल्सो, जी सर, विच इज़ वेरी, और वो 10th 12th क्लास वाले 4 साल नहीं है, वो 4 साल है जो मतलब 22-23 साल के बाद वाले 4 साल है, जो कि बहुत क्रूशियल है। जी सर। सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अ वुमेन कैंडिडेट? Yes sir, मतलब it is as compared to male candidates, it's a slightly difficult thing because we have so many social barriers. Correct. Even if the family is supporting, for example in my case my parents were really supportive of me, but relatives around me, they're like कि ये तो इतनी हो गई है, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, मतलब they used to question us. So this is the extra challenge that they have to prove their worth. सो ये सर, मतलब चैलेंज तो है, बट वही है कि आप अगर इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू देन जस्ट बी रिलेंटलेस हार्ड वर्क करते रहिए और अपने गोल पे बस टिके रहिए until you like have success. Okay, that really great words you said. One last thing I want to just ask कि देखो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, अप्स एंड डाउन्स है, खुद को कंटिन्यूसली हमें मोटिवेटेड रखना होता है। सो इज़ देयर एनी लाइक किसी की कोई मूवी होती है, कोई कैरेक्टर होता है जो फेवरेट होता है, जिसको लेके इंस्पायर होते हैं, या कोई कोट होता है, कोई लाइन होती है, इज़ देयर एनीथिंग विच यू हैड across your journey which used to like whenever you feel down you just used to look at that or you just say that and you feel okay? सर हाँ, मतलब एक कोट थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कोट, बट आई जस्ट आई हैव अ सेव स्क्रीनशॉट। उसका था कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। मतलब व्हाट इज़ सक्सेस? सक्सेस वो जितने भी आप साल का जो हार्ड वर्क है, वो रिलेंटलेस जो हार्ड वर्क है ना, वो सक्सेस है। तो मेरे दिमाग में से वही रहता था कि वॉट एवर आई एम डूइंग, मतलब इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट मी। तो आई वुड से कि जो मेरा 4th अटैम्प्ट है, ये सिर्फ ये वाली मेहनत नहीं है, वो जो 4 साल से वो कंटिन्यूस मेहनत चल रही है, वो उसका वो एक रिजल्ट है, वो सक्सेस। तो दैट वॉज वन कोट दैट आई सेव्ड एंड आई यूज्ड टू सी इट लाइक सो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच, इट वॉज़ रियली अ ग्रेट सेशन। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की एंड वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर सक्सेस, यू रियली डिजर्व इट इंडियन फॉरेन सर्विस में, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आई एम पर्सनली वेरी मच प्राउड ऑफ यू, आवर एंटायर टीम इज़ वेरी मच प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर।